10th. My name is Sudhir Kumar Srivastav. Today I am delivering you first chapter of chemistry, chemical reaction and their equation, which is already given you in your WhatsApp group PDF. You can download it and today give this live class by their some short point in their reactions. First topic, chemical reaction. The process in which new substance with new properties are obtained by the combination of one or more than two reactants are known as chemical reaction. For example, if we take the example A plus B is equal to C, when this A plus B combine to form C, it means if A means hydrogen gas and B means iodine, when we combine in a vessel A hydrogen and iodine gas, after some time they converted into each other, mixed with each other to form a new substance which property is almost different from hydrogen and iodine, that is a different types of gas, that is hydrogen iodide. In this reaction, the substance which take part in the chemical reaction, that is known as reactant. Means hydrogen and iodine combine with each other to form hydrogen iodide. So this hydrogen and iodine is reactant and the product, the substance hydrogen iodide, because it is formed in the reaction. It means without the involvement of the reactants and products, no chemical reaction takes place. If any one of them absent, either reactant or product, then the reaction is not possible. It means we can say it is the two important components of chemical reaction like our hands. This chemical reaction is completed. We can say it is a chemical reaction, hydrogen and iodine to form hydrogen iodide. And now you look that a arrow is put up between hydrogen iodine with hydrogen iodide. This arrow represents the formation of hydrogen iodide by the reactant, which head represents the formation of product and tail represents the hydrogen and iodine reactant which take part in the reaction. Now we discuss another topic, that is chemical reaction. But before chemical equation, we already know that reactants are always written in the chemical reaction left hand side and product are always written at right hand side. Reactants are positive and products are negative. But after the formation of the product, reactant is negative and product is positive. Because when the product is formed, the reactant converted into product and no reactant is present. So now chemical equation. Chemical equation is the symbolic representation of chemical reaction, is called chemical equation. केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का एक पद्धति है जिसके द्वारा हम रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। केमिकल रिएक्शन को रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए हमें पहले उस रासायनिक अभिक्रिया को सेंटेंस फॉर्म में लिखना होता है और फिर उस सेंटेंस फॉर्म से हम उसको वर्ड इक्वेशन में लेते हैं और वर्ड इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उन वर्ड के उन तत्वों को फॉर्म में हम उसको लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड, but it is a word equation and the sentence equation is that when we say that when hydrogen combine with iodine to form hydrogen iodide, that is sentence. Now this word equation
written in the form of their symbolic equation, symbolic form, सिंबल के रूप में, तत्व या उसके प्रतीक के रूप में। जैसे हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है H होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन H2 लिखा गया, इसका मतलब ये गैस है। मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में जो होते हैं, डाई एटॉमिक फॉर्म जो होते हैं, वो गैस है। तो हाइड्रोजन प्लस आयोडीन कंबाइन हो रहे हैं, क्या बना? हाइड्रोजन आयोडाइड। अब यहाँ पे हमने देखा कि हाइड्रोजन का सिंबल H2, आयोडीन का सिंबल I2, दोनों कंबाइन हुए, मिक्स हुए वेसल के अंदर कंडीशन पे, डिफरेंट कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, तो क्या बनाया उसने? हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसी हाइड्रोजन आयोडाइड के फॉर्म को हमने किस फॉर्म में लिख दिया? सिंबल फॉर्म। दैट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सेकेंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण भी कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दोज केमिकल इक्वेशंस इन विच द नंबर ऑफ द एटम्स ऑन द बोथ साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल आर नोन एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अर्थात ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें कि नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने पे इक्वल हो, हम उसको कह सकते हैं क्या? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, दोज केमिकल इक्वेशंस in which number of atoms on the both sides, either reactant or product sides, are not equal are known as unbalanced chemical equation. आपने देखा कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन असंतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें कि दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के जो हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं, यदि वो इक्वल नहीं है तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन उसे कहते हैं। आइए हम देखते हैं इसको रिएक्शन के माध्यम से। H2 प्लस I2 कंबाइन टू फाइव हाइड्रोजन आयोडाइड, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर हम इसको चेक करें तो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में हमें नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना होगा। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 एटम है और प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन के 2 एटम। रिएक्टेंट साइड में आयोडीन के 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में भी आयोडीन के 2 एटम्स हैं। तो इस तरीके से ये कैसा इक्वेशन है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दूसरा एग्जांपल देखिए, Mg। सेकेंड एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये रिएक्शन ये बता रहा है कि ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। लेकिन इसको हम कैसे चेक करेंगे? इसमें हम चेक करेंगे, फिर से वही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट काउंट करेंगे। इस साइड मैग्नीशियम 1 है, लेकिन इस साइड भी मैग्नीशियम 1 है। नंबर ऑफ एटम्स दोनों के सेम है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, जबकि राइट हैंड साइड में कितना है? 1 है। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है क्योंकि इस साइड 2 ऑक्सीजन एटम है और इस साइड 1 ऑक्सीजन एटम है। इसीलिए ये जो इक्वेशन है ये क्या है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को कैसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में चेंज करेंगे, इसी को आपको दूसरे टॉपिक में बताने जा रहा हूं, हाउ टू बैलेंस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। कैसे हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बदलते हैं। और यही सेकेंड वाले एग्जांपल को ही मैंने इस बैलेंस मेथड में लिया है। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बाय द डिफरेंट स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट वी राइट द equation in their sentence. First step, how to balance unbalanced chemical equation. Write in the sentence form.
राइट इन द सेंटेंस फॉर्म। पहले हम उस केमिकल रिएक्शन को सेंटेंस फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखा गया, जैसे लिखा गया मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो इसको हम सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड स्टेप क्या होगा, राइट इन वर्ड फॉर्म। फिर उसमें से हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लेंगे अलग अलग, उसको वर्ड फॉर्म में लिखेंगे। जैसे दूसरे साइड मैंने लिखा है, अभी आपको बताता हूँ, पहले ये 4 स्टेप आप देख लीजिए। फर्स्ट राइट इन सेंटेंस फॉर्म, सेकेंड राइट इन वर्ड फॉर्म, थर्ड राइट इन सिंबल फॉर्म, उसका सिंबल लिखेंगे। फिर फोर्थ स्टेप क्या होगा, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स। हम नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे, जैसे अभी हमने ऊपर काउंट किया था बैलेंस और अनबैलेंस को चेक करने के लिए कि कितने एटम्स है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, अगर इक्वल है तो बैलेंस है ऑलरेडी, अगर अनइक्वल है तो अनबैलेंस है। तो फर्स्ट वी काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द बोथ साइड एंड मल्टीप्लाई द फिगर द लेस नंबर साइड। फिर हम जिधर नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे उस साइड हम उस नंबर से दूसरे साइड के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे क्या वो बैलेंस है कि नहीं। तो आइए देखते हैं, इसी 4 स्टेप से हम एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट, जैसे मैंने कहा व्हेन मैग्नीशियम कंबाइंड विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसको मैंने बेटा फर्स्ट लिखा क्या, फर्स्ट स्टेप मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका सेंटेंस फॉर्म हो गया। इसका सेकेंड स्टेप हमें याद करना चाहिए, क्या मैंने बोला था, मैंने आपसे कहा राइट इन द वर्ड फॉर्म, हमें उसको वर्ड के फॉर्म में लिखना होगा। तो हमने लिखा क्या, मैग्नीशियम रिएक्ट मींस मैग्नीशियम एक रिएक्टेंट हो गया, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फिर हमने साइन लगाया एरो का, फिर लिखा क्या टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप राइट इन द सिंबल फॉर्म। अब उसी सेकेंड स्टेप के जो हमने वर्ड लिखे हैं उसके सिंबल हम जानेंगे और उस सिंबल को हम राइट करेंगे। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल Mg आपको पता है, क्लास 9 में आपको बताया गया है। ऑक्सीजन का वो मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में सिंगल स्टेट में रह सकता है, मेटल है लेकिन ऑक्सीजन गैस है, ये डाई एटॉमिक फॉर्म में पाया जाएगा। तो Mg+O2 टू फॉर्म MgO। यहां तक सबको समझ में आया। पहले हमने क्या लिखा, केमिकल लिखा, सेंटेंस फॉर्म, फिर उसके बाद उसका क्या लिखा, वर्ड फॉर्म, फिर क्या लिखा, नंबर काउंट किया और उसको बैलेंस। अब हम नंबर का फोर्थ स्टेप क्या करेंगे कि दोनों साइड काउंट द नंबर, दोनों साइड के नंबर एटम्स को काउंट करेंगे। जैसे हमने लिखा है स्टेप 4, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड। काउंट करने से पहले हम देख लेंगे पूरे रिएक्शन में, पूरे रिएक्शन पहले हम स्टेप थर्ड में देख लेंगे कि कितने एलिमेंट्स, कितने सिंबल पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे दोनों साइड में एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन, यही दो एलिमेंट आपस में मिलकर बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट साइड पे लिख देंगे क्या, मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 1, और मैग्नीशियम प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 1। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, आपको बताया गया है। तो ये 2 ऑक्सीजन के एटम हो गए और रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में कितने हो गए, 1। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मैग्नीशियम दोनों साइड बैलेंस है, लेफ्ट और राइट साइड मैग्नीशियम बैलेंस है, 1 और 1 है। लेकिन आपका ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 2 है और राइट साइड में 1 है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए राइट हैंड साइड में हमें उस फिगर से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2 ऑक्सीजन एटम है, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से राइट हैंड साइड में। तो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी अब बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम अनबैलेंस हो गया। अब मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार फिर से नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे दोनों साइड, नंबर ऑफ एटम्स को दोनों साइड काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 2 मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड, 2 मैग्नीशियम राइट हैंड साइड, 2 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड, 2 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड।
इस तरीके से आपने देखा ये एक हाउ कैसे मैंने अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया। और इसके दूसरे एग्जाम्पल भी आपको पीडीएफ में दिए गए हैं, या अभी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ जिसको आप राइट करके कंप्लीट करके स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट लाइव क्लास में मुझे आप दिखाइए। ओके, हम आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा बैलेंस करना बताएंगे। जैसा कि अभी आपने एक एग्जाम्पल लिया, उसके बाद भी कुछ एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताऊँ। इसके बाद आप जो भी आपकी बुक में एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल है, उनको आप बैलेंस कीजिए और बताइए कि आपका बैलेंस हो पाया है कि नहीं हो पाया, आपको अच्छे से आया कि नहीं आया। नहीं आया तो एक बार फिर मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन प्लीज आप इसको एक बार फिर से घर पे होमवर्क के रूप में इसको कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड, इसका फार्मूला है BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 के थ्राइज। बैरियम क्लोराइड जब रिएक्शन करता है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ तो बैरियम सल्फेट बनाता है और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। अब हम इसको काउंट पहले चेक करेंगे कि ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो आइए हम चेक करते हैं कि ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो हम चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में बैरियम A, राइट हैंड साइड में भी बैरियम A। लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन 2, राइट हैंड साइड में क्लोरीन 3। तो यहाँ पे अनबैलेंस पहले से हो गया, क्योंकि हमने देखा क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम दोनों साइड इक्वल नहीं। ये क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, जबकि यहाँ पे क्लोरीन के 3 एटम्स हैं। थर्ड, एल्युमिनियम को देखते हैं, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 1, ये भी इक्वल नहीं है। तीसरा देखते हैं कि आपका सल्फेट, सल्फेट कितने हैं 3, यहाँ पे सल्फेट कितना है 1। तो ये अनबैलेंस इक्वेशन है। अब इसको हमें बैलेंस करना है, इसको हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम उसको पकड़ेंगे जो कि सबसे अकेला है, जो कि सबसे सिंपल है। बैरियम तो ऑलरेडी बैलेंस है, आपने चेक किया है, यहाँ पे बैरियम बैलेंस। सल्फेट इस साइड देखिए सल्फेट 3 है, इस साइड देखिए सल्फेट कितने हैं 1 है, और सल्फेट इसमें है नहीं, केवल एक ही प्रोडक्ट है। तो पहले हम सल्फेट को बैलेंस कर लेते हैं, 3 टोटल कर लेते हैं। अब ये सल्फेट टोटल बैलेंस हो गया। सल्फेट को आप अलग अलग भी तोड़ सकते हैं। सल्फेट में क्या क्या मिलके बना है, सल्फेट 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन मिलके सल्फेट बना है। तो यहाँ पे आप देखिए 3 से जब आपने मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पे ब्रैकेट में 3 लिखा है, मतलब 3 सल्फर हो गए मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 3 सल्फर और 12 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम काउंट में मल्टीप्लाई किया हमने, तो 3 सल्फर हो गया और कितना हो गया 3 4 जा 12 ऑक्सीजन। तो सल्फेट भी बैलेंस हो गई। लेकिन जब सल्फेट को हमने बैलेंस किया तो बैरियम एक बार फिर जो कि पहले से बैलेंस था वो अनबैलेंस हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए बैरियम कितना है 1, जबकि राइट हैंड साइड में कितना हो गया 3। तो इसको हमने बैलेंस करने के लिए तो हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं बैरियम 1 था, जो कि 3 हमने जब बढ़ाया राइट हैंड साइड में तो बैरियम का अमाउंट बढ़ गया, वो भी 3 एटम हो गए। तो हमने बैरियम को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे बैरियम भी 3 हो गया और इस साइड भी बैरियम 3 हो गया, सल्फेट भी बैलेंस हो गया। अब बचे कितने एटम लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंस करने के लिए 2, एक एल्युमिनियम बचा, एक आपका क्लोरीन बचा। तो आप देखिए जब यहाँ पे हमने बैरियम को 3 से बैलेंस किया तो यहाँ पे कितने आ गए क्लोरीन। क्लोरीन का नंबर कितना हो गया 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 6 क्लोरीन एटम्स हो गए। अब इस 6 क्लोरीन एटम्स को हमें बैलेंस करना होगा राइट हैंड साइड में, क्योंकि राइट हैंड साइड में कितने हैं केवल 3 हैं। तो हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 6। इस तरीके से आपने देखा क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, 3 2 जा 6 एंड 2 3 जा 6 क्लोरीन बैलेंस। अब क्या बचा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हम देख लेते हैं उसको भी। तो आइए देखते हैं एल्युमिनियम लेफ्ट हैंड साइड में 2 और यहाँ पे एल्युमिनियम कितना 2। तो अब आप देखिए सभी एटम्स बैलेंस हो गए। बैरियम 3, बैरियम 3, क्लोरीन 3 2 जा 6, क्लोरीन 6, 2 3 जा 6, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, सल्फर 3, सल्फर 3, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 12। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। सेकेंड एग्जांपल फिर से हम लेते हैं।
When nitrogen reacts with hydrogen to form ammonia gas. यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया भी एक गैस है। नाइट्रोजन आप जानते हैं वायुमंडल में फ्री स्टेट में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जिसका परसेंटेज आपको बता दें 78% है एटमॉस्फेयर में। तो वही नाइट्रोजन गैस को लेके हाइड्रोजन के साथ बेसन में कंबाइन करते हैं, अमोनिया गैस बनती है। आइए इसको भी हम चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस करने से पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि कौन कौन से एटम्स बैलेंस हैं, कौन कौन से नहीं। अगर नहीं है तो वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसको हमें बैलेंस करना है। अगर बैलेंस है तो फिर उसको हमें बैलेंस नहीं करना है। तो आइए चेक करते हैं इस रिएक्शन के लिए। नाइट्रोजन को हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं, 2। नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं और ये इस साइड राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन के कितने हैं, 1। तो पहले ही अनबैलेंस हो गया, इक्वल नहीं है। और आपको बताया था जब नंबर ऑफ एटम्स इक्वल ना हो दोनों साइड तो अनबैलेंस होता है। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, जिसे हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। सेकेंड हम देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 2 है, 2 एटम्स हैं, जबकि अमोनिया में 3। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। हम राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करने के लिए नाइट्रोजन एटम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप देखिए दोनों साइड नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, 2 नाइट्रोजन एटम, 2 नाइट्रोजन एटम। अब हम चेक करते हैं हाइड्रोजन की क्या स्थिति बनी, क्या वो और भी ज्यादा नंबर बढ़ गया कि इक्वल हो गया। तो हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, जबकि राइट हैंड साइड में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई 6 हाइड्रोजन एटम्स। अब हमें इस साइड राइट हैंड साइड 6 हो गए, लेफ्ट हैंड साइड 2 हो गए। अभी हमें इसको बैलेंस करने कितने और चाहिए, 4 हमें चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें, तो 3 2 जा 6। अब आपने देखा हाइड्रोजन भी इस साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया और नाइट्रोजन भी इक्वल हो गया। तो ये कैसा इक्वेशन हुआ, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम चलते हैं थर्ड एग्जांपल पे। लेड नाइट्रेट जब रिएक्शन करता है पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन के साथ तो बनाता है लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। तो इसके लिए पहले फिर से वही फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देना होगा हमें कि नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे, हम ये पता लगाएंगे क्या ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है। अगर कोई पहला ही हमें इक्वल ना मिले तो मतलब ये सीधे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आइए चेक करते हैं। लेड 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में लेड 1 है,